Can you see the screen, guys? Hello. अच्छा, तो मुझे जल्दी से बताइएगा. अभी मुझे एक आवाज आई कि जी किसने बताई है? What's your name? Abdullah. Abdullah just told me that verb is an action. Abdullah, A levels or intermediate? Intermediate. All right. So verb is an action. We all agree to this? Any additions, any subtractions that you want to make in the sentence? Anything that you want to add or reduce? No? Yes, that's what I wanted to hear. So, sir, 90% people say that verb is an action, except for this guy. He may be crazy or he may be a legendary genius. We don't know that yet. But 90% people say that verb is an action. So, bear with me, please. I teach English. Where's the action? Teach is the action. Sentence is complete because there is a verb, there is a subject, and there is an object in the sentence. So in the same way, he is or he comes to the class. So where's the action? Where's the verb? Comes. So again, this definition is so far so good. So help me out here. He is a Pakistani. Where's the action? So where's the action, sir? Madam? No action? Is this an action? आपकी definition fail हो गई, sir. Yes. Sir, again, one more time. He has a car. Where is the action? Where is the verb? Is it an action? Oh, sorry, somebody said helping verb. Who said helping verb? Is a helping verb. This one is a helping verb. Okay. And what about this one? ये भी helping verb. अच्छा चलो ठीक है देखा this is the confusion that I wanted to introduce. So far 2 people are on the same page with me. Help me out here. He is teaching English. So where's the main verb? Where's the helping verb? And so again, let's compare this with so helping verb, main verb, state verb, action verb. क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है? ये क्या मजाक है? What is it? बताओ. Main verb. Yeah. बाकी लोग sir helping verb. Yeah, this room has a little bit of poltergeist scene going on. Not for real. Okay, he is a teacher. So is क्या? Helping verb. तो यार देखो, अभी helping verb को 2 सेकंड के लिए साइड पे रखते हैं. ये वाली डेफिनेशन जो है ना वो 2-3 जगहों पे हो जाती है फेल. सर जैसे what's your name बेटा? Arib is or Arib belongs to a noble family. Arib, can you stand up? Right, he's just staying right there. He's not doing any action. He's not moving at all, and he says that I belong to a noble family. Do you see any action happening? No. Yes or no? Sir, इसका मतलब कि सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है. Thank you so much. सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है सर. लेकिन इंग्लिश का एक बेसिक सा रूल होता है, बल्कि काफी सारी जुबानों का एक बेसिक सा रूल होता है सर, कि जब हम छोटे से छोटा सेंटेंस भी बनाते हैं, यानी एक इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं जो किसी भी लैंग्वेज का सबसे छोटा सेंटेंस होता है, तो सर उसमें भी क्या चाहिए हमें? वर्ब चाहिए सर. यानी मेन बात क्या, वर्ब के बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता सर. वर्ब के बगैर सेंटेंस बन ही नहीं सकता सर. वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट द सब्जेक्ट. गो सिट ओवर देयर, दैट्स अ सेंटेंस. वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट. ही टीचेस, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट है. बट वर्ब के बगैर दिस कैन नॉट बी डन. सो आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वर्ब इज एन एक्शन, राइट? आपकी डेफिनेशन के हिसाब से ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है. सर इस सेंटेंस में एक्शन ही नहीं है. ये सेंटेंस तो खराब हो गया. फिर ये सेंटेंस में एक्शन नहीं है. अगेन दिस सेंटेंस इज ऑल मेस्ड अप टू.
सर इसका मतलब कि हमें इस डेफिनेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा सर, थोड़ा सा एडिशन करिएगा अपनी मतलब अभी तक की लर्निंग में भी और अपनी डेफिनेशंस में भी सर। वर्ब इज नॉट जस्ट एन एक्शन, इट इज एन एक्शन और अ स्टेट। नोट दिस डेफिनेशन डाउन प्लीज। जो अगर इस क्लास को 100% अस्यूम करें तो ओनली 2 people were able to identify this, Arib and Rabel Sumro. Where is the other Sumro sister? Right here. ठीक है. So Rabel Sumro was able to identify that, Arib was able to identify that. बाकी लोग अभी तक 12 साल में ये सीख के आए कि verb is only an action. We have to change that. अच्छा, usually the paper only requires you to write. लेकिन ना मेरी एक बात समझिएगा, in order to write well you have to make correct sentences, yes or no? And in order to make correct sentences we need to have a strong grammar base, yes or no? Yes. है ना? हम डायरेक्ट यार राइटिंग स्टार्ट करेंगे ना तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा उसमें, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा. So what we have to do is do some basic groundwork before we get into the main objective of the paper. Do we agree on this? Yes. सही है, ठीक है. तो हम अपनी क्लास को जो 1.5 घंटे का पोर्शन होगा सर उसको बांटेंगे 3 पार्ट्स में. एक पार्ट में हम लोग करेंगे थोड़ी सी ग्रामर, एक पार्ट में हम टच करेंगे थोड़ी सी वोकैबुलरी और एक पार्ट में हम करेंगे अपने सिलेबस का पोर्शन ही राइटिंग का पोर्शन. राइटिंग इज अगेन नॉट picking up the pencil and start writing. We'll have to go and again cover some theories before we start writing. Right? Make sense? So, चलें. तो सर अभी तक मैंने ये बात की कि verb is just an action. नहीं सर, verb is an action or it is a state. यानी eat is an action but belong is a state. So go is an action but is or be is a state. तो हम क्या करेंगे सर, हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, एक कहलाती है एक्शन वर्ब और एक कहलाती है स्टेट वर्ब. थिंक ऑफ 3 एक्शन वर्ब्स प्लीज. सर गो, ड्रिंक एंड वॉक. चलें वॉक कर लेते हैं. एंड थिंक ऑफ 3 स्टेट वर्ब्स सर. सबसे पहले बी, उसके बाद हैव, क्योंकि ये दोनों बहुत खतरनाक चीजें हैं, ये आगे चल के तंग करेंगी हमें. और तीसरा कर लेते हैं सर he is, he contain कर लें. This laptop contains a lot of instruments or a lot of particles, a lot of parts, yes or no? This class contains 50 students at most, right? So contains कर लेते हैं. लेकिन this is not the end. These are few examples of many state verbs. अच्छा, अब मैं आपको ना एक ग्रामर की बुक बता रहा हूँ. इस बुक का नाम है सर, नोट करिएगा अपने पास, चाहे तो इसकी आप हार्ड कॉपी ले लें जिसको ज्यादा अच्छा लगे. मैं इसकी आपको एक पीडीएफ लाजमी शेयर करूंगा, सही है? लेकिन जिसको पीडीएफ में, और मुझे खुद भी पीडीएफ में इतना ज्यादा कोई मजा नहीं आता, आई नीड अ हार्ड बाइंड बुक, तो आप चाहें तो आप इसकी यूट्यूब बाजार जाके या नीचे बुक शॉप से भी पता कर लीजिएगा. इट्स मोस्टली अराउंड अंडर 500, राइट? So you should be able to get this Oxford Practice Grammar, and the writer's name is John Eastwood. ठीक है जी. अच्छा, एक बात मैं अभी सी बता दूं सर, जब भी हम ये बुक खोलेंगे ना, हम इसमें पेज नंबर कभी भी नहीं देखेंगे, ठीक है? We will not see the page number. What we'll see is the exercise number or the unit number. ठीक है? This is what we'll see. ठीक हो गया? और जैसे ही आपको ये बुक मिलेगी सर, तो हम इसमें से कुछ सॉल्व करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे इसको इस स्क्रीन की मदद से. और स्क्रीन आप देख रहे हैं कि फ्लक्चुएट हो रही है काफी सारी. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल, जब तक बुक आ रही है हमारे सामने, how many forms of verbs do we have? Sorry, 5. Most of the people say, ये तो उनकी ओपिनियन है यार, आप बताओ. अरे what do you think? सही है. बाकी लोग
क्या चल रही है मतलब, चलें 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 चलें, कोई बात नहीं. Okay, the book is here, sir. Let me show you the title firstly. ठीक है जी, दिस इज जॉन ईस्टवुड. और अपने पास लिख लें कहीं, आज हम इसमें से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7. सर एक्सरसाइज नंबर 7 बताती है कि स्टेट और एक्शन वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहले, so there are many verbs which only show you in action, like I'm moving my hands, I'm moving my fingers, I'm talking to you. These are all actions. You can see something happening right now. Yes, लेकिन सर उसके अलावा बहुत सारी verbs होती हैं जो सिर्फ स्टेट दिखाती हैं. जैसे the room is big, right? I am Alvin, you are my students, I'm your teacher. This is ARTT, we are in Karachi, right? ये सारी एग्जांपल एक ही वर्ब की हैं, वो है बी वर्ब, right? सर इनमें से जो ये वर्ब्स हैं, ये वाली बी, बिलीव, आई बिलीव इन अल्लाह. व्हेन आई से आई बिलीव इन गॉड, डू यू सी एनी एक्शन हैपनिंग? नहीं सर. I belong to a noble family. This table consists of wood. I depend on you. कोई भी एक्शन होता हुआ नजर आता नहीं आता, तो ये हो गई स्टेट वर्ब्स. ठीक है जी. अब दूसरी बात हम ये करते हैं सर, एक वर्ब की होती हैं कितनी फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स. Mr. Abiel scored a point again. Yes. Take a look. Sir, हम करते हैं कैसे? हम करते हैं go, went, gone, going and goes. So this one is called the base form, जिसको हम infinitive भी कहते हैं. सही है? This is called the past form, second form. This is called the past participle. मैं सिर्फ इसके साथ लिख रहा हूँ. चलें. Past participle. नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. This one is called present participle and this one is called the present form. ठीक, दो पार्टिसिपल हैं और दो फॉर्म्स हैं हमारे पास और एक इंफिनिटिव है. क्लियर? ये ला, थोड़ा सा मैं ऊपर उठा देता हूं ताकि सब लोग देख लें. अच्छा, अब गेम ये है कि हम इसको याद रखेंगे यार कि इसकी बेस फॉर्म क्या है. बेस फॉर्म हम लोग याद रखेंगे चीजें. ठीक है? बेस फॉर्म क्या है? गो. एंड इसी तरह इसकी बेस फॉर्म है सर बी. पास्ट में गया तो was verb. पार्टिसिपल बना तो बीन. आईएनजी बना तो being and is am are in the present form. सही? तो इस एक अकेली वर्ब की 8 फॉर्म्स हैं और किसी वर्ब के साथ ये सीन नहीं है. ठीक? So then we have note it down please. Seven. So far so good. अभी तो कोई मसला, कोई सवाल?
चले आगे, शुड वी वेट? चले आगे, क्या कहते हैं जी? चलते हैं आगे। अच्छा, दूसरी बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि बुक आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है भाई, कि हम एक स्टेट वर्ब को जब बेस फॉर्म में यूज करते हैं, जब हम एक स्टेट वर्ब को बेस फॉर्म में यूज करते हैं तो सर उसका मतलब होता है कुछ और अगर उसको आईएनजी में यूज करें तो उसका मतलब होता है कुछ और। व्हेन आई से आई थिंक यू आर राइट, तो उर्दू में क्या मतलब बनेगा इसका? मुझे लगता है कि तुम सही हो, राइट? एंड व्हेन आई से आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, मैं इस वक्त इस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूं, द मीनिंग चेंजेस, राइट? जब मैं कहता हूं वी हैव 3 कार्स, इसका मतलब हमारे पास 3 गाड़ियां हैं। और जब मैं बोलता हूं आई एम हैविंग लंच, इसका मतलब मैं लंच खा रहा हूं। So should we say we are having 3 cars or we have 3 cars? We are having 3 cars changes the meaning entirely. मैं 3 गाड़ियां खा रहा हूं. We don't want to say that, right? Sir, I come from Sweden, मतलब I belong to Sweden, मैं इस जगह से हूं, and when I say I'm coming from Sweden, मैं वहां से चलते हुए आ रहा हूं, मैं वहां से ट्रैवल करते हुए आ रहा हूं. Do you see the difference? सही है. एक और डिफरेंस है, आजा, एक और डिफरेंस ये होता कि जैसे ही हम किसी स्टेट वर्ब को आईएनजी में शिफ्ट करते हैं सर, वो परमानेंट से टेम्पररी की तरफ मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू अ सेंटेंस हियर। सर, जब मैं बोलता हूं आई डोंट लाइक पार्टीज, इसका मतलब क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे पार्टीज पसंद नहीं है सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बट आई एम लविंग दिस वन, इट मींस मुझे जनरली पार्टीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये वाली एंजॉय कर रहा हूं मैं। So when I say I'm loving this one, I'm not talking about all the parties, I'm talking about this particular one. मैं एक टेम्पररी सिचुएशन की बात कर रहा हूं। सर, कितने लोग हैं जो कराची में रहते हैं? रेज योर हैंड्स प्लीज। और कितने लोग हैं जो कराची में पढ़ने आए हैं? सिर्फ 1 2 3, ठीक है। तो सर, आई लिव इन कराची, ठीक है जी, but these days I am living in Berlin because of my studies. तो सर, जब मैं बोलता हूँ live, इसका मतलब मैं अपने परमानेंट रेजिडेंस शो कर रहा हूँ, और जब मैं बोलता हूँ I'm living, तो मैं शो कर रहा हूँ अपनी टेम्पररी रेजिडेंस। Do you understand the difference? ठीक है सर। वैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन आजकल ना मैं ये काम कर रहा हूँ, सही, समर वेकेशन में मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, so ऑटोमेटिकली वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या टेम्पररी एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहां तक समझ आती बात? तो सर, एक मैकडॉनल्ड्स का ऐड है कि जी आई एम लविंग इट, हैव यू हर्ड इट? सर, वो कह रहे हैं कि मुझे बर्गर्स यूजुअली पसंद नहीं है, लेकिन ये वाला बर्गर जो है इसमें कुछ अलग बात है, दिस वन आई रियली लाइक। सो दूसरी बात क्या, मीनिंग चेंज होता है। एक और चेंज क्या होता है कि परमानेंट से टेम्पररी की तरफ शिफ्ट होता है। लेट्स टेक अ लुक। So when I say I'm liking, it means I'm talking about a temporary situation, and when I say I like, I'm talking about a permanent situation. Clear है ये बात? सर, 3 बातें हुई हैं अभी तक। वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं होता, अगर उसको स्टेट वर्ब में अगर उस स्टेट वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज करें तो मतलब अलग है, और बेस फॉर्म में यूज करें तो मतलब अलग है। सर, एक डिफरेंस क्या आता है कि परमानेंट की बात करेंगे तो बेस फॉर्म, अगर टेम्पररी सिचुएशंस की बात करेंगे तो आईएनजी फॉर्म। यहां तक तीनों चीजें क्लियर होती हैं। सर, आखिरी बात आज की ग्रामर का पोर्शन होगा ये कि एक हेडिंग डालिएगा अपने साथ, इसको हम बोलते हैं सर प्राइमरी ऑक्सिलरी verbs. Sir, what are primary auxiliary verbs? ठीक है, और कोई बताएगा? मिस सुमरो, do you have an understanding of this one? अरीब, सही है, कोई बात नहीं। देखो सर, अभी तक हमने कहा था जी he is helping, इसमें बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सा? या ही इज टीचिंग कर लेते हैं, सॉरी। सो हेल्पिंग वर्ब इज सर ही इज अ टीचर। हेल्पिंग वर्ब है कोई? है
सर अब ये मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब कब होगा? जब हमारे पास कोई और दूसरा वर्ब होगा। अगर कोई और दूसरा वर्ब नहीं है तो ये जो कल तक हेल्पिंग वर्ब था अब क्या बन गया भाई? जब तक अब्बा हैं हम लापरवाही में मौजूद हैं, हम अपनी अयाशी कर रहे हैं, तफरियां कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अब्बा को कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर आती है सारी जिम्मेदारी। यस और नो? सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? Similarly, this helping verb becomes the main verb when there is no other verb in the sentence, right? सर अगर कोई वर्ब इस तरह से करती है, यानी वो सेम टाइम पर सर हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए और मेन वर्ब भी बन जाए, सर इस तरह की वर्ब को हम क्या कहते हैं? बोले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दैट्स इट। डू वी अंडरस्टैंड दिस सर? सर इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सर इस तरह का काम कर सकती हैं तीन वर्ब्स इंग्लिश में, ठीक है जी। एक आ गई कौन सी? बी वर्ब। याद है बी वर्ब की फुल फॉर्म क्या थी? सर इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग एंड बीइंग। तो एक आ गया सर बी, ठीक है। दूसरा आ गया सर हैव। ये देखें, he has bought a car. Can you identify the main verb? Sir, can you identify the helping verb? So, and when I say he has a car, where is the main verb now? Is there any helping verb? No, sir. और अगर साथ में लाएं, ये आगे चल के सर बड़ा तंग करेगा आपको, कुछ लोगों को समझ आया, अभी भी आ रहा है सर। आगे चल के ये लिखा जाएगा he has had a car since childhood। तो सर ये क्या? मेन वर्ब। ये क्या? हेल्पिंग वर्ब। सर who has seen this structure before? तो जिन लोगों के लिए नया सर वो जरा गौर से लिखिएगा, ठीक है। He has had a car, sir, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, दिस इज द मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि हैव की फुल फॉर्म क्या थी? और एक इसकी मेन जो इंफिनिटिव था वो है ये ना सर? ठीक हो गया? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इंफिनिटिव। सर ऐसी कोई और वर्ब कर सकती है? बताएं। तीसरी, यू शुड नो दिस, आपकी नजर से रोज गुजरता है ये वर्ब। टॉक टू मी सर। द थर्ड वर्ब इज डू, जिसकी फुल फॉर्म डू, डिड, डन, डूइंग एंड डज। सर कैसे करेगा? He did not buy the car. So where's the main verb? Where's the helping verb? So let's convert them into एक सेंटेंस में दोनों लेके आते हैं। So where's the main verb? Do मेरे भाई, do. And where's the helping verb? Did. तो सर एक ऐसी वर्ब जो सेम टाइम पर हेल्पिंग वर्ब भी बन सके और मेन वर्ब भी बन सके, सर उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसके अलावा सर ये हरकत कोई और वर्ब नहीं करके देगी आपको। आज की क्लास में हमने तीन चीजें सीखी। वर्ब क्या बच्चों? एक्शन होता है या स्टेट होता है, दोनों में से कोई एक चीज होगी, सही है। दूसरी वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 5। सर उसके बाद हमने ये सीखा कि स्टेट वर्ब को एक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसको आईएनजी में लेके आ जाए सर। सर अगर परमानेंट सिचुएशन को टेम्पररी सिचुएशन में लाना है तो आईएनजी में लेके आ जाए, सिंपल सी बात। और तीसरी बात हमने सीखी सर, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर सके और मेन वर्ब की तरह भी काम कर सके। इजी टू अंडरस्टैंड या? चलें सर इसको नोट कर लें जितना आप करना चाह रहे हैं। बताएं क्या, कहां तक है? डू दिखा दूं बस, ठीक है जी, ये लें।
I promised you 2 songs as an example. लेकिन वो टॉपिक के साथ करेंगे. पहले मुझे बताएं, I'm giving you a choice one more time, sir. Should we start with figures of speech or should we start with foreign phrases? Figures of speech it is. सबका ये opinion है. Say something, बच्चा. Figures of speech. Rule with the majority, huh? More chance of survival. Foreign phrases. Foreign phrases. Phrases. Yes, sir, I remember. अच्छा, but before we jump to that, we have to understand कि हमें समझ आया या नहीं. आए जी. सर ये करेंगे एक एक बंदा. अरीब से स्टार्ट कर रहा हूं मैं और जहां तक जाए सर उसके बाद. अरीब, एक हमने ये बताना है. We each solve one question, right? हमने पहले में ये बताना है सर action है या state है. Simple as that. So my flat is in the town center. Is it an action or a state? It's a state. Next one. Action verb है सर. I drive a taxi in the daytime. Action है सर. आगे. State है सर. I own 2 cars. I go to lots of parties. सर बारी बारी ना. चलें सर सब साथ में करते हैं, कोई बात नहीं. सर नंबर 5, I love football. State है पक्का. मुझे लग रहा है आप पूछ रहे हैं. तो एक्शन नहीं है. ठीक है जी. सर अब करने में 2 ऑप्शन सेलेक्ट. I think or I'm thinking. What's your good name? Khizr. So complete the conversation. Choose the correct form of the verb. Hi Matthew, what are you looking at? पहले हमने एक example देख लिया. So this arrow thing is an example. हर दफा हर exercise में मिल जाएगी आपको. Oh hi, these are the photos of me when I was a child. Or look at this one. Gee, I think I'm thinking. Sir, I think is the correct answer. मुझे ऐसा लगता है कि तुम अच्छे थे, प्यारे थे. I think you look lovely. Matthew, madam, your turn. I'm having some photos here. I'm having some photos here. I have some photos. Right? हमने अभी discuss किया था कि I'm having lunch has a different meaning. If you take in state verb into an ing, it changes the meaning. So I have some photos here. Look at this. Why such a big coat? It wasn't. It was my brother's. That's why. It didn't fit. Perfect. It didn't fit properly. Oh, I see. थोड़ा जोर से बचा. Oh, I see. And you have or you're having. Now you're having tea because we are having tea. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. And in this one, again, you're thinking about something very serious. Sir, आपकी बारी. This is a photo of the village I come from. Sir, इसी तरह चेन चलाते रहिएगा. Oh, that's nice. I caught this fish. Look. Come on, man. See, this guy is laughing over here because it's super simple. Come on. No, I'm just kidding. Yeah. Come on. It weighed, sir. It weighed means उसका वजन इतना था and I was weighing it, मतलब मैं उसको तोल रहा था. Sir, moving on. आपकी बारी. What's your name? Nasir. Nafe. All right. So sorry for mispronouncing it in the first go. Put the correct form of be. Be की कितनी forms है? 8 forms है. Daniel is doing some work. Some of the work he is being very helpful at the moment. I'm tired. I want to go home. The children. Work option ही नहीं है सर अभी तक. Nafe solving it. Children is are plural. G. The children are very polite or are being very polite. Why are being? Because वो normally polite नहीं होते. आज बस acting कर रहे हैं. आज बन रहे हैं. So it's a temporary situation. Getting it? Sir, they usually don't behave so well.
Sir, आपकी बारी. I am afraid Melanie can't come because she. Simple. Wonderful, sir. Of course you can understand it. You. Sir, तुम बेवकूफ हो या तुम बेवकूफ बन रहे हो? You are being stupid. That's all. We, sir. आपकी बारी यार, आपकी बारी. हाँ. अच्छा इस वो नहीं हुई ना रो सर. ठीक है, सॉरी फॉर दैट जी. Number 4. We are interested in doing this course here. And number 5, Vicky is being very lazy at the moment. At the moment is an indication that this is a temporary situation. ठीक है जी. चलें, ये इतना important नहीं है. We can skip this one. तो सर हेडिंग डालिएगा figures of speech. अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच में भी हम लोग बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, वो भी सॉन्ग्स से. But we will not play this for now. All right. सर सबसे पहले हेडिंग डालें personification. ये कोर्स का पार्ट नहीं है, but I'm just teaching you that so that you can get an understanding. Sir, personification. Yeah, personification is the ability to put any human factor or human quality into a non-living thing. सही है? I'll repeat it one more time. या उससे पहले ना अगर आप चाहो तो ये लिस्ट अपने पास कॉपी करो. Sorry, figures of speech. Sorry, personification की क्या कह रहे हो? इसको कहते हैं सिमिली. बता, सब बताएंगे बारी बारी. Alright. Sir, personification is. अब लिस्ट चलें लिस्ट कर लें पहले. डन हो गया? अच्छा, इसको अगर आप अपनी राइटिंग में यूज कर पाओ ना यार, इट वुड बूस्ट योर राइटिंग लाइक एनीथिंग, राइट? बिलीव मी. आप, मैंने एक क्लास में एग्जांपल दी थी वो बैकबोन वाली. आप इमरान खान के बारे में बोल सकते हैं, किसी भी अपने फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में बोल सकते हैं. ही केम लाइक अ बीकन ऑफ न्यू होप, राइट? आपने कंपेयर कर दिया, आपने सिमिली यूज कर ली यहाँ पे. हजरत अली इज द लायन ऑफ गॉड, हमने मेटाफोर यूज कर लिया यहाँ पे. It adds value to your writing, basically. चले नहीं? So, personification is giving a non-living thing. Personification is giving a non-living thing any human attribute. Any human attribute. So किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक एट्रीब्यूट की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं आप. So किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आपने लिविंग थिंग वाली कोई भी क्वालिटी दे दी, वो हो गई पर्सोनिफिकेशन. एग्जाम्पल लिखें, सिंपल सी. Sir, the trees were dancing in the night. Trees actually don't dance, right?
बट हम क्या कह रहे हैं, उनकी मूवमेंट को एक एक्सप्रेसिव वे में दिखाने के लिए सर हमने कहा कि द ट्रीज वर डांसिंग। एक और एग्जांपल, कभी यू ऑल मस्ट हैव हैड पिज्जा राइट, लेकिन कभी पिज्जा के लास्ट स्लाइस पे लड़ाई हुई है कभी, मतलब दोस्तों के साथ, या कोशिश की कि जो एक हल्की सी इनफॉर्मल सी छीना झपटी होती है ना कि लास्ट पीस ऑफ द पिज्जा आई विल हैव इट, हैव यू एवर डन दैट? अच्छा पहले आप वाला, जबरदस्त है, तहजीब याफ्ता लोग माशाल्लाह। तो एक सेंटेंस लिखिएगा सर, द लास्ट पीस ऑफ द पिज्जा वाज कॉलिंग मी, द लास्ट पीस ऑफ पिज्जा वाज कॉलिंग मी। अच्छा इसकी ना मैं आपको विजुअल एक रिप्रेजेंटेशन दूं, अगर आपने कभी टॉम एंड जेरी का एक कोई एपिसोड देखा हो तो टॉम क्या करता है, वो लाके रखता है चीज, चीज में से निकलता है एक धुआं, और धुआं जो है ना उसके अंदर से एक हाथ आता है और जेरी को उठा के जो है ना वो लेके जाता है अपने साथ। सो द लास्ट पीस ऑफ पिज्जा वाज कॉलिंग मी, पिज्जा कैन नॉट कॉल यू, बट हम सिर्फ उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए किया, मैंने कुछ नहीं किया, उस लालच मेरे दिल में आ गया था राइट। वन मोर टाइम सर, द लास्ट पीस ऑफ पिज्जा वाज कॉलिंग मी। और क्या आ सकती है सर पर्सोनिफिकेशन, और क्या आ सकती है, these the city has seen a lot, the city has seen a lot। इमेजिन बर्लिन की बात करें, बर्लिन ने इतनी बॉम्बार्डमेंट देखी है, इतनी बॉम्बार्डमेंट देखी है, you cannot even imagine that in first world war and in second world war। तो सिटी नहीं देख सकता, but we are saying the city has seen this one right। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल लिखी थी क्या, inflation has broken the backbone of economy। तो सर personification is the ability to give non living things some, ये एक अच्छी एग्जांपल इंटरनेट पे भी मिल गई सर हमें, ये देखिए, the sun smiled down on us। सूरज कभी कभी मुस्कुरा के देखता है सर, लेकिन अच्छे मौसम में हम लोग ये सेंटेंस बोल लेते हैं राइट। द स्टोरी जंप्ड ऑफ द पेज, मतलब द स्टोरी केम टू लाइफ, वो एकदम इतनी रियल लगने लगी कि वैसे जैसे जिंदा हो गई है राइट, मैं उसके अंदर जाके उस चीज को देख पा रहा हूँ। द लाइट डांस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है जी, रोशनी नाच रही थी, बट रोशनी कैन नॉट डांस एक्चुअली। तो हमने ये सुना होगा दैट हर चीज के दो मतलब होते हैं, एक होता है सर लिटरल और एक होता है फिगरेटिव। लिख लें अपने पास प्लीज। सर लिटरल इज द एग्जैक्ट मीनिंग, और फिगरेटिव जो हम लोग अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, डीपर मीनिंग इन अ वे, डीपर मीनिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक सेंटेंस लिखिएगा, he was like a fish out of water, yeah, he was like a fish out of water। इसका मुझे लिटरल वर्ड टू वर्ड मीनिंग करके बताओ क्या होगा, लिखना नहीं बस बता दो। he was like a fish out of water, सर ऐसे था जैसे बगैर पानी के मछली होती है, दिस इज द लिटरल मीनिंग राइट। हमें ये मीनिंग नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए इसका फिगरेटिव मीनिंग। सर फिगरेटिव मीनिंग क्या है सर, he was out of place, he was super uncomfortable somewhere, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ आ गया। so if you really love parties सर आप अपने एलिमेंट में होंगे, but if you don't like going to the parties, if you don't like going to weddings, तो आप क्या होंगे, आप you will be like a fish out of water। yes or no? yes sir। तो ये हो गई सर हमारे पास क्या, figurative meaning versus personification। let's go back to this one। अगला लिखिएगा सर, सिमिली को डिस्कस कर लेता है। सिमिली, दिस वन, ये बहुत कॉमन है सर, बहुत आसान है, किसी को पता, बोले सही है। सिमिली इज कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर वन, सिंपल लिखो। सिमिली इज कंपेयरिंग वन थिंग टू अनदर। सर मैंने एक ऐसे में लिखा
बल्कि आज ही हमने एक क्लास में डिस्कस किया. लेट मी शो इट टू यू, क्योंकि आगे चल के हमने यही काम करना है, ऐसे ही लिखना है. चेक दिस आउट. Sample essays, weight loss. Yes. सर ये एक इंट्रो पैराग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ. टेक अ लुक एट दिस. Sareeb, would you mind reading it for me, for everyone? हाँ पढ़े. Okay, anyone else? पढ़े. Acts, confinement of women at home, destruction of schools and government buildings, collapse of social life and daily business for the scenario before the launch of Operation Rahe Rast in Sawan. All the endeavors to maintain peace in this region were failing. As a last resort, army was sent to restore peace, to maintain law and order, and to throw Taliban out of Sawan. ठीक है. This is one sample. Let me show you one more thing. आ गया है. Okay. I had this. I saw this. Yes. ये पढ़ो. Nothing could be more devastating for a country than the entrance of terrorism in its territories. It is like a disease, like cancer. ये रुको. ये क्या? It is a टेररिज्म, राइट? टेररिज्म को हमने किससे कंपेयर किया? कौन सी डिजीज के साथ? कैंसर के साथ. सो वी हैव कंपेयर्ड टेररिज्म विद कैंसर. आगे. Which slowly and secretly start with activities and discovers when it is too late. So मेरा एक पूरा अच्छा खासा एक सेंटेंस जो वो सिमिली की मदद से बन गया सर. ठीक है जी. मैंने सिमिली को टेररिज्म से कंपेयर किया. मैंने कहा ये डिस्ट्रॉय कर देती है एक करके सारी चीजें. However, like a vigilant person who has regular medical checkup and identifies disease before it is too late. And the simile continues, sir. अब मैं फिर से अपने आप को एक अच्छे इंसान की तरह जो डेली चेकअप कराता है, रेगुलरली चेकअप कराता है, मैं टेररिज्म को भी इसी तरह से हैंडल करूंगा. यानी इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा खराब हो, मैं उसको वहीं पे कंटेन कर दूं. So that's how you use a simile in a sentence. Sir, simile वापस आते हैं अभी, क्योंकि ये बिल्कुल फाइनल फॉर्म में हम लोग अभी इसको सिंपल रखते हैं. Sir, imagine that you're talking about your parents, your father or your mother, and what qualities do they have? Compare them, please. Are they as busy as a bee? Yeah. Are they as brave as a lion? Fill a sentence, please. If you cannot think anything about your parents, let's see if you can put a friend there. Let's do that. Maybe you'll imagine something. हम अपने माँ बाप को क्यों करें जानवरों से कंपेयर यार, हम अपने दोस्तों को करते हैं. चलें. So any friend who's really fast, you can say he is as fast as a deer. बिल्कुल सही है. सर एक दोस्त जो हमेशा पैसे देने से कतराता है और बोले कि कोई और ही निकाल ले, चलो कोई बात नहीं, तो ही इज एज कनिंग एज अ फॉक्स. या. और एक दोस्त जो हमेशा आपको अच्छी एडवाइस देता है, सर ही इज एज वाइज एज सोलोमन. एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपके खड्डे में आपके साथ होता है, सर ही इज एज ब्रेव एज अ लायन. ही इज एज हेवी एज एन एलिफेंट. मे बी someone who's as patient as a job. Job was a prophet. तो एक सेंटेंस लिखिए सर. माय फादर इज एज वाइज एज सोलोमन. सोलोमन इज किंग सोलोमन. सर माय फादर इज एज वाइज एज सोलोमन.
ठीक है, व्हाट्स योर नेम बेटा? Neha just quoted an example. She is as white as snow. Yeah, ये एक लिख लें अपने पास. अभी नहीं एग्जाम्पल्स याद आ रही हैं आपको? आ रही हैं कुछ? चलो, as cool as cucumber. CNC जब वो राइम करता है ना, अच्छा राइमिंग की भी बड़ी गेम होती है. जितने भी फेमस कार्टून कैरेक्टर्स है ना, उनके साथ यही हुआ हुआ है, या जितने भी कॉमिक कैरेक्टर्स उनके साथ भी यही हुआ हुआ है. जैसे ब्रूस बैनर, राइट, डोनाल्ड डक, मिकी माउस, तो DDCC साथ में मैच करें अच्छा लगता है. सो एज कूल एज अ क्यूकम्बर, द लैंग्वेज हैज टू बी म्यूजिकल, राइट. अच्छा जी, आगे चलते हैं सर. सर सिमिली बनाने के लिए ना आपको दो वर्ड्स चाहिए होते हैं कम से कम, या तो एज आना चाहिए या लाइक आना चाहिए. ठीक है, ये दो चीजें लास्ट. अब आइएगा सर मेटाफोर के साथ. मेटाफोर इज अगेन कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक. ठीक है जी. मेटाफोर, सर मेटाफोर का मतलब ये है कि ही, लिखिएगा एक सेंटेंस, he was a lion in the battlefield. He was a lion in the battlefield. अब मैं ये कह रहा हूं कि यार वो शेर की तरह नहीं है, वो शेर है. The comparison is stronger or weaker? Stronger sir. ठीक है जी. सर अगर मैं इल्म का शहर हूं तो अली मेरा दरवाजा. This is again a metaphor. So he is the door of this city, right? He is the door of the city of knowledge. Sir, Ali शेर खुदा भी हैं, बोले? ठीक है जी. In English, I meant. So he's the lion of God. He's God's lion. Sir, any 4 examples, any 3 examples that you want to quote, अपने पास लिखिएगा जी. ये देखें जी, क्या सेंटेंस आया सर. your words hurt deeper, your words cut deeper than a knife. लिखिएगा ये लें, your words cut deeper than a knife. Yeah, good one. Save this sentence for your spouses. Sir, his words or her words cut deeper than a knife. ठीक है जी. अच्छा, अब इसका फिगरेटिव मतलब क्या है कि बहुत ही तीखी जुबान है तुम्हारी, इसका मतलब लिटरल मतलब कुछ नहीं बनेगा, राइट. एक और लिख लें सर, मैं डूब रहा हूं, अभी डूबा तो नहीं हूं. A very famous song, again, I am drowning in the sea of grief, right? Write this one down. और अभी देखिए मैं कितनी सारी एग्जांपल्स लेके आता हूं आपके लिए. Have you heard the song Afri Afri? Yeah, that is full of similes and metaphors. Right? आंखें देखी तो मैं देखता रह गया. Now he's comparing the eyes to the cups of wine. जाम दो और दोनों ही दो आदशा. आंखें नीची हुई तो ये बन गई, आंखें ऊंची हुई तो वो बन गई. ठीक है क्या? These are all what? Metaphors and similes. So one more thing, एक और सॉन्ग था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब. Now this is a hardcore simile, right? Like a blooming flower, जैसे शायर का ख्वाब, like a poet's dream. सही जी. This is all what's a simile. अगर इंग्लिश में कोई इसकी एग्जांपल देखनी है सॉन्ग्स में, तो एक गाना जी हनी बी by Blake Shelton, old country song, but try to find it out. You'll get tons of similes there. I can play it for you later. सही है. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सर. सिमिलीज एंड मेटाफोर्स में कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, आगे चलते हैं. आगे लिखिएगा सर हाइपरबोले. हाइपरबोले, द फोर्थ वन. हाइपर जी, सवाल बोले. कंपैरिजन, दुख को समुद्र के साथ कंपेयर किया.
जो खत्म ही नहीं हो, ये दुख खत्म काहे नहीं होता, वो अलग वाली बात। सही है। आगे सर, नाउ वी टॉक अबाउट हाइपरबोलेस। हाइपरबोलेस आर एग्जैजरेशंस। एग्जैजरेशन समझते हैं? एक चीज को ना बढ़ा चढ़ा के आपने बता दिया, ठीक है जी। आपने कभी सेंटेंस सुना है, ये बोला माय बैग वेज अ टन, राइट? मेरा बैग इतना वजनी है, मैं इतनी देर से चला के आ रहा हूँ। या आपने कभी बोला किसी को, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस, राइट? कैन यू लिटरली से समथिंग टू समवन मिलियन टाइम्स? सर 10 लाख दफा किसी को एक बात बोलना इज फिजिकली इम्पॉसिबल, इट इज साइंटिफिकली इम्पॉसिबल, राइट? लेकिन हम क्या बोलते हैं फिर भी मिनटों में इतनी दफा था, जस्ट टू एग्जैजरेट दैट, राइट? सो लिखिएगा एक सेंटेंस, एक एग्जांपल, माय डैड मेक्स अ टन ऑफ मनी। माशाल्लाह, सही है। You always have countless complaints. That can literally not be true, right? और क्या हो सकता है सर? I've told you a million times, ये करें, 3 आ गई। और इसमें से जो एग्जाम्पल आपको अच्छी लग रही है सर वो लिख लें। मैं इसको जरा सर्च कर रहा हूँ इंटरनेट पे, हाइपर बोले जी, हाँ, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक thousands of times, सही है। वाह, ये देखें सर, he ran with the lightning speed। कभी किसी को सुना होगा ये बोलते हुए गॉड स्पीड, राइट? सो जो सेंटेंस आपको समझ आ रहा है सर वो लिख लें अपने पास। He's got tons of money, ये हमने कर लिया। Her brain is the size of pea, बिल्कुल सही है, लिख लें। 3-4 एग्जाम्पल कोट कर लें बस अपने पास जो आपको अपील कर रही हैं। I'm so hungry that I could eat a horse. In some cultures, they actually do eat horses. I've told you a million times not to that. Questions? No questions? पक्का? सर अगला लिखिएगा oxymorons. Oxymorons. अच्छा, moron itself is a curse word, right? Oxymoron, sir. Sorry? Yes. Sir, give me the original copy. ओरिजिनल है या कॉपी है? अगर ओरिजिनल है तो कॉपी नहीं हो सकता, और अगर कॉपी है तो ओरिजिनल नहीं हो सकता। You will be okay as long as you act naturally. So if you're acting, you cannot be natural, or if you're natural, you cannot be acting. They're opposites, right? And the best one of them all, I am happily married. So you can either be happy or you can be married. You cannot be both at the same time, right? So oxymorons are two opposite words that are connected together to make impact in your writing, right? ये भी कोई अच्छा कॉमेडियन हो ना जो मतलब वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं इन चीजों को। I would say Trevor Noah is a better example. Trevor Noah. सर कोई एग्जाम्पल समझ में आ रही है, याद आ रही है? Anyone? अच्छा, दो you are all you know very studious बच्चे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं सर इस सिचुएशन में? हम बोलते हैं we are finally alone together, right? You can either be alone or you can be together. You cannot be both at the same time, but it happens. Yes, लिख लें सर। Oxymoron. ये लें जी, कोई जो समझ आ रही है एग्जाम्पल वो नोट कर लें अपने पास। ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। जूम आउट, ये क्या हुआ है?
Why is this out of frame? ठीक है जी. आप अपने ऐसे में एक ऐसे आता है हमारे पास कि जी पाकिस्तान एंड इट्स प्रॉब्लम्स, राइट, द क्राइसिस फेस्ड बाय पाकिस्तान. तो आप बोल सकते हैं जी पाकिस्तान इज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, राइट. इट्स ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू विन अ लूजिंग वॉर. ऑक्सीमोरॉन सर. या सर, बिलीव इट और नॉट, ये आपकी लैंग्वेज, आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, उसमें सर एक वैल्यू ऐड करते हैं और उसमें एक निखार आता है. कैसे निखार आता है? एक एग्जांपल लिखिएगा, एक टाइप लिखिएगा अपने सामने. इसको हम कहते हैं यूफेमिज्म. यूफेमिज्म, यूफेमिज्म सर. Now suppose that you are not educated, suppose that you are not considerate, suppose आप में ये सारी जो ह्यूमन फीलिंग्स होती है ना अच्छी वाली, ये नहीं है. आप किसी से अफसोस करने जाते हो, आप क्या बोलते हो, यार बड़ा अफसोस हुआ तेरा बाप मर गया. How crude, how rude is that? Yes or no? Right sir? तो इन जगहों पे आती है सर यूफेमिज्म काम. सर हम कहते हैं रहलत फरमा गए, आया ना निखार. सर हम कहते हैं गुजर गए, हम कहते हैं वो हमें छोड़ गए इस दुनिया में अकेले, राइट. हम कभी भी नहीं बोलते कि अकड़ गई है बॉडी, राइट. वी डोंट से दैट. व्हाई? बिकॉज वी आर लिटरेट पीपल. तो सर हम क्या बोलते हैं जी, he has left us alone in this world. One, he has passed away. Two, and in Christians they say he has slept in Christ. Three, we can also say that his soul has ascended. Four, right? So all of these are what, sir? Euphemisms. ठीक हो गया जी. And moving on. तुम में से काफी लोग के अभी तक एनआईसी नहीं बना अभी. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैच्योरिटी नहीं आई ना अभी पूरा. स्क्रीन देख के खुश हो गए तुम लोग. चलो अच्छा जी आगे बढ़ते हैं सर. हाइपरबोले हो गया. हाइपरबोले के अपोजिट क्या आ गया सर? यूफेमिज्म. अच्छा, यूफेमिज्म से मिलती जुलती एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लाइटोटस. लाइटोटस भी किसी चीज के इफेक्ट को कम करके बताती है. नहीं सॉरी, लाइटोटस इज समथिंग एल्स. लाइटोटस ये है कि आप एक नेगेटिव रिस्पांस के जरिए एक पॉजिटिव बात करते हो या एक पॉजिटिव रिस्पांस के जरिए एक नेगेटिव बात करते हो. यानी जो आप कहना चाहते हो ना उसका उल्टा होता है. नहीं, नॉट टन्स. टन्स में तो एक फीलिंग है ना, एक इंटेंशन है कि अगले बंदे की बैंड बजे. यहाँ वो फीलिंग नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई लाल किला गया क्या? सर हैव यू एवर बीन टू रंगोली? ओके, what rest? Have you ever had Pizza Hut? Pizza, right? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि जी कैसा है और आप उसके जवाब में बोलते हो इट्स नॉट बैड, बुरा नहीं है, तुम्हें जाना चाहिए, बोलते हैं ना सर? बोल सकते हैं ऐसा? इट्स नॉट बैड, you should try it sometimes. When we say it's not bad, we are actually trying to say that it is good. It is good actually. It's not bad, you should go, right? So जब हम बोलते हैं it's not bad, we are actually trying to say the opposite. That is what sir? That is lightotus. एक वीडियो बड़ी वायरल हुई हुई आजकल, वो कराची डूबा हुआ और पीछे गाना चल रहा है मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, राइट? सो सजाद अली कहते हैं कि जी मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, अभी डूबा नहीं हूँ, which means I'm still surviving, which means I'm still there, right? कपिल शर्मा का एक नेटफ्लिक्स पे वो आया था जी I'm not done yet. सुना? When somebody says किसने सुना? सही है जी. Who has Netflix IDs? डिलीट कर दो यार, पेपर होने वाला है तुम लोग के अभी सीए में आके हो जाता. तो जब मैं कहता हूं सर कि आई एम नॉट डन येट, इसका मतलब कि मैं अभी बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूं, मुझ में टैलेंट अभी खत्म नहीं हुआ.
तो ये है सर लाइटोटस और ये हैं इसकी एग्जांपल्स. The best one is, sir, accountancy is not rocket science. When we say it's not a rocket science, हम क्या कहते हैं जी, आसान सी चीज है यार. It's not that difficult. हम कहना चाहते हैं कि it's easy. The trip wasn't a total loss. मतलब हमने कुछ तो सीखा ही है. This isn't my first rodeo means मेरी पहली बार नहीं है ये. Right? This is not a debut match for me. और क्या हो सकता है सर? I think it's enough. तो ये हो गया सर क्या, लाइटोटस. अच्छा जी, लाइटोटस हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, अंडरस्टेटमेंट और आयरनी और इडियम रह गया, राइट? But our half hour is gone. So 2 o'clock we stop this vocabulary section. Let's move on to the writing part. अरे 1.5 घंटे की क्लास में ब्रेक कौन मांग रहा है ये? Who's that? 2 घंटे की होती है, I would have given it to you, but चलें. सर हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 आइडिया जनरेशन. सही है? चलो आज हम लोग देखेंगे यार कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद क्या करते हैं. आधा घंटा है तो सर हम लोग 3-4 टॉपिक इसमें कवर कर सकते हैं. सही है? मुझे एक बात बताओ, कॉमर्स के कितने लोग हैं आज? काफी है माशाल्लाह. तुम लोग के दिमाग में आई एम गिविंग यू 1 मिनट. जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं ना, सब लोग जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं उनको ना उनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करो. एंड योर टाइम स्टार्ट्स इन 1 2 3 गो. अकाउंट्स टाइटल मतलब कैश आता है दिमाग में, अकाउंट रिसीवेबल आता है दिमाग में, वो लिखना शुरू करें सर. हेड्स ऑफ अकाउंट्स. यस sir, euphemism is like phrasing your sentence in a respectful manner. Yes. Maham बिल्कुल सही कह रही हैं. What about it's not the end of the world? Hyperbole, it's litotus. It's more like a litotus. मतलब अभी बहुत दिन बाकी हैं, अभी काफी ज्यादा टाइम है हमारे पास, ये दुनिया खत्म नहीं हुई है. अच्छा, online students, I may give you a response a little late, but I will give that. Don't worry. I'm gonna die. Hyperbole, बिल्कुल सही है. But it can be literal as well. सोचा भाई? हाँ ठीक है. अभी टाइम है, लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे. So Khizr, Harib, Raghel, what's your name? नाफे. आज मतलब 4-5 बंदों के नाम याद हो जाएंगे मुझे. Alright, so done. हो गया done. 1 मिनट ही तो बोला था. कितने लिखे? सही है, गुड है, बेहतरीन है सर. अच्छा चले. नाउ सर फॉर अ न्यू टॉपिक, ओपन अप अ फ्रेश पेज. इसको इसके साथ मिक्स नहीं करिएगा अगर, ठीक है. अब मैं क्या चाह रहा हूँ सर आपसे कि think of all the incomes that you can think of. Incomes, only incomes.
सर सैलरी जो दिमाग में आ रही है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। पहले वाला सिर्फ कॉमर्स वालों ने किया है क्या? अब सब कर प्लीज। इनकम सर, इनकम्स गाइस। And you have 2 minutes. Go. सोचो, अभी से सोचो कहां कहां से पैसा कमाना है बड़े होकर। क्या लिखा तुमने? क्या? रेंट डालो, रेंट दोनों तीनों जो समझ आ रहा है लिखो। सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सही, इंटरेस्ट भी लिख ले भाई, ठीक है। तुम लोग सिर्फ सैलरी क्यों सोच रहे हो यार? सैलरी में प्रोविडेंट फंड भी आता है, उसमें टीए भी आते हैं, उसमें अलाउंसेस भी आते हैं। बड़ा सोचो ना थोड़ा सा यार। हाँ, बोनस भी मिलता है आपको। आप वो सैलरी नहीं अभी मिलेगी यार, अभी 10-10 लाख में जो ना वो पैकेज बनेंगे, ये इसका, ये उसका, ये उसका, सारी चीजें सोच के देखो। पॉकेट मनी, चले ठीक है डाल लें। पॉकेट मनी इज नॉट योर इनकम यार, वो योर डैड्स जेनरोसिटी। स्टाइपेंड इज अगेन काइंड ऑफ एन इनकम, चले ले लें। लिखा? 2 मिनट तक सर, 1 मिनट हो गया। Tax is not an income, tax is a deduction from your income. गवर्नमेंट की इनकम। हम अपनी सोच रहे हैं यार। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना गवर्नमेंट के लिए नहीं, वो अपने क्लाइंट के लिए लड़ता। गवर्नमेंट के लिए लड़ते हैं ये सीएसएस वाले। डालें वैसे, accrued is something which is not earned yet, right? आप earned income डालें। चलो हो गया भाई। It's alright, it's alright. Nice song by the way. अच्छा जी, अच्छा, what's your name? बिस्मा। अब बिस्मा मुझे इस वजह से याद रहेंगी। ठीक है, alright बच्चों, अगला टास्क ये है कि you know how the problems are in Pakistan. List down all the problems that you can see. Anything for this one, sir, 3 minutes. ये काफी लंबा है, राइट? अच्छा, काफी नहीं है, आई नो, जस्ट कीप गोइंग। क्या करा रहा हूँ? सॉरी, करें करें, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह करें, शुक्र करें, हो जाएगा। पॉवर्टी है, पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन है सर, आजकल कोविड भी है, और क्या। लिखे 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 लिखे, हाँ पोलियो, ठीक है, गुड। लिखते जाओ। 3 मिनट दिए ना यार, तभी तो ज्यादा थोड़ा सा टाइम बढ़ाया मैंने, जो अभी भी कम है, लेकिन चला। सर ये जो अभी आप काम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अगले वाला काम बता रहा हूँ मैं।
इन जनरल पॉलिटिशियंस, यस। एक अकेला शहबाज थोड़ी है यार। हो गया। Have we gone through 10 of them at least? Yeah. बताएं आप, क्या नाम था? तला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जी। इलेक्ट्रिसिटी, सही है। ये ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों लिखे हैं जो बता नहीं पा रहे हो तुम? नहीं मतलब बताओ ना। अरे वो बताने वाली बातें नहीं है सर, ये साइड में आएंगे। चले ठीक है। I agree that there are so many problems. Now think of this one, sir. Take a look at this diagram, please. सर ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है, हम क्या करते हैं, हम 2 सेकंड के लिए ना अपना दिमाग खोलते हैं और उसमें से निकलते हैं आइडियाज। सर उन आइडियाज की ना कोई शेप नहीं होती है, कोई साइज नहीं होता है, वो जैसे दिमाग में आता है ना सर वैसे ही हम लिख देते हैं। दे आर वेरी क्रूड, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। यस और नो? है ना? अब हमने क्या करना है सर, हमने इसको करना ऑर्गेनाइज। उस ऑर्गेनाइजिंग टूल को हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने एसे में, अपने लेटर में हर चीज को ऑर्गेनाइज करके लिखेंगे। ऐसे रैंडमली लिखना शुरू कर देंगे तो आपके दिमाग में, देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अभी जो आपके पास आइडियाज है ना, वो बिल्कुल इस ह्यूमन बॉडी की तरह। सपोज कि आपके दिमाग में आया सबसे पहले हार्ट, और हार्ट को आपने दिमाग की जगह लगा दिया, गेट दैट? एंड देन आपने सोचा यार हार्ट के पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन, तो आपने ब्रेन लगा दिया। सो योर ह्यूमन बॉडी, दिस ह्यूमन बॉडी दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट विल हैव हार्ट एंड ब्रेन वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब सर में आपका दिमाग होगा और सर में आपका दिल होगा, ठीक है दैट? अगर हमने इसको अरेंज करना है सर, अरेंजमेंट की इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज इन योर एसे एवरीथिंग हैज टू गो इन द राइट ऑर्डर। यस और नो? तभी हमारी ह्यूमन बॉडी सरवाइव कर पाती है, तभी हमारा ऐसे भी सरवाइव कर पाएगा। हाँ या ना? राइट? सो एवरीथिंग हैज टू गो इन द राइट प्लेस। तो अभी हमने जो 3-4 एक्सरसाइज की है सर, उसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज दे रहा हूं सर, उसको कहते हैं एफिनिटी डायग्राम। नोट इट डाउन। और एक और हम करेंगे, सही है? एफिनिटी डायग्राम डाउन, हेडिंग डाउन। सर अभी जितने भी आपने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, आई वांट यू टू अरेंज देम इन दीज कैटेगरीज। सो भाई आपने बोला था पानी नहीं है, बिजली नहीं है, किधर जाना चाहिए? पॉलिटिकल इश्यूज में आना चाहिए, इकोनॉमिक इश्यूज में नहीं आना चाहिए, बोला? तो अब आपने जो जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं ना सर, उनको इन कैटेगरीज के हिसाब से अरेंज कर दें, जगह पे डाल दें। दैट्स इट। गो बैक टू योर पेजेस। और अगर कोई आपको लग रहा है कि इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक नई कैटेगरी बना दीजिएगा। I'll show you why we are doing this. कर सकते हैं, आपके ऊपर है। You'll have multiple tools to think about, to work with. आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से काम करिएगा। Pestle analysis is kind of an affinity diagram. सर लेट्स सपोज आपने इतने सारे प्रॉब्लम सोचे हैं, अब एक पैराग्राफ लिखेंगे जो होगा पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड, और उसमें सारे उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स आ जाएंगे, उसी से रिलेटेड इश्यूज आ जाएंगे। दूसरा आपने सोचा, दूसरा पैराग्राफ बना रहे हैं जो रिलेटेड है किससे? इकोनॉमिक एंगल से। अब जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उसी पैराग्राफ में आएंगे, वो इधर उधर नहीं घूम रहे हैं, वो अरेंज हो गए एक जगह पर, ठीक है? यानी अक्सर क्या होता है सर, एक पैराग्राफ में एक बात होती है, फिर वही तीसरे पैराग्राफ में बात रिपीट हो जाती है।
This will stop you from repeating the same ideas again and again. Yes or no? Bhai, yes or no? Yes. और जैसे ही हो जाए मुझे बता दीजिएगा प्लीज. क्या हम इन चीजों को अरेंज कर पा रहे हैं? तो have you done it? Are you doing it? Are you done? कर लिया. तो अब आपने जो पहले प्रॉब्लम्स लिखे थे अब हो गए क्लासिफाई, अरेंज हो गए एक तरह से. तो फिर नहीं, फिजर 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 आप मुझे बताएंगे व्हाट आर द पॉलिटिकल इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान? आपने जो लिखे हैं वो बताइएगा. ठीक है, सही है, बाय पॉलिटिशियंस. आगे इट्स ओके, इट्स ओके. टू आइडियाज. Old methods of election. ओल्ड मेथड्स ऑफ इलेक्शन, सही है. 3. व्हाट आर द इकोनॉमिक इश्यूज फेस्ड बाय पाकिस्तान? सर आप मुझे बताएंगे कुछ नहीं. अरसलान. इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है और फॉरेन रिलेशन. इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा चीजें आनी चाहिए थी यार. गर्ल्स में से कोई बताएगा? नहीं नहीं बताना नहीं है यार. वो मुझसे दुश्मनी, नाराजगी कोई? इन्फ्लेशन एंड पॉवर्टी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. ट्रेड डेफिसिट पता है किसी को क्या होता है? ठीक है, वो लिखा है किसी ने? सही है. सर हमारे पास जो है बीओपी डेफिसिट, वो पता है किसी को? चलें कोई बात नहीं, अभी तक जितने आइडियाज लिखे हैं वो काफी हैं. सही है. सर लेट्स गो बैक टू higher rate of imports and less exports. बिल्कुल सही है. Sir, can we talk about any environmental issues? Climate change, pollution. अब देखो आपके आइडियाज ना फिल्टर आउट होगा. ठीक है था. अच्छा, इसी एक्सरसाइज को ना एक दफा और करते हैं. सर आपने लिखा, इससे पहले एक आपने लिखी थी चीज जिसमें आपने इनकम्स को नोट किया था, राइट? मैं आपको दे रहा हूँ 5 कैटेगरीज उसको करने के लिए. लेकिन इसको टैक्सेशन जब आप पढ़ोगे ना कैफ 2 में जाके, टैक्सेशन में इसको, इस टॉपिक को कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम. क्योंकि इनकम टैक्स वालों के पास हर इनकम को नापने के लिए वो कोई कैटेगरी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, 5 कैटेगरीज बना दी, उसमें सारी चीजें डाल दी. सर फर्स्ट वन सैलरी. अब सैलरी से जितनी भी रिलेटेड चीजें सर वो इधर फेंकिएगा. दूसरा लिखिएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी से जैसे भी इनकम आती है सर, रेंट बेच के वो यहां पर आ जाएगी. सर तीसरी चीज आ जाएगी हमारे पास, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गई. सर तीसरी आ गई इनकम फ्रॉम बिजनेस. सर चौथा आ गया कैपिटल गेन. कभी ज्वेलरी बेची आपने, कभी घर बेचा आपने, कभी गाड़ी वाड़ी बेची आपने, तो वहां से होने वाला प्रॉफिट आएगा यहाँ पर, वहां से होने वाली इनकम आएगी यहाँ पर. एंड जो इन चारों में नहीं आएगा ना सर, वो कहलाता है अदर सोर्सेस. तो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, नई कैटेगरी बना लो. इसका अदर सोर्सेस मोस्ट ऑफ द टाइम अदर सोर्सेस में आते हैं डिविडेंड इनकम, आपकी इंटरेस्ट इनकम आ जाती है यहाँ पर. सही है.
तो भाई फिर से क्लासिफाई करो चीजों को। कमीशन इनकम कहां से ले रही हैं आप? सैलरी से उठा रही हैं या बिजनेस से उठा रही हैं? मोस्टली इट फॉल्स इन बिजनेस। इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट इनकम होती है, इंटरेस्ट आएगा अदर सोर्सेज से। मतलब इंस्टॉलमेंट पे आप एक आर चार्ज करते हो ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो, वो आपका प्रॉफिट होता है, इसलिए वो अदर सोर्सेज में आता है। वो एक कैश इनफ्लो नहीं है, वो तो आपने खुद से बना दिया ना। कैश इनफ्लो तो नहीं हुआ ना वो, आपने खुद उसको रीवैल्यू किया, राइट? आपकी जेब में कोई पैसा तो नहीं आया, सो इट इज नॉट एन इनकम इन टैक्स। अकाउंटेंसी में टैक्स में जी बिल्कुल। अदर सोर्सेस, प्रॉपर्टी में वो एक टोकन मनी समझते हो क्या होता है? नहीं नहीं, टोकन मनी जो आप समझ आई, कोई चीज खरीदने से पहले देते हो, अगर वो चीज आपने खरीदी नहीं और आप का मतलब मुकर गए, डील खराब हो गई, तो वो इनकम बन जाती है किसी बंदे की। कैपिटल, सॉरी कैपिटल गुड्स, कैपिटल गेन, सॉरी कोई भी चीज बेच के जो आप चीज का इनकम आती है, वो होती है आपका कैपिटल गेन। जब आप इंशाल्लाह जाएंगे कैफ 2 में, सर तारिक टोनियो विल डील यू विद यू रिलेटेड टू टैक्सेशन। कैफ डन जी, नहीं हो जाएगा, मैंने तो छोड़ दिया था जान, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। जी सर, कुछ हो रहा है? अच्छा अभी I don't want you to do it, you won't be able to do it 100%, but you should be able to categorize things, that's what I'm saying. अच्छा अब आते हैं ये आईकैप वाली एग्जांपल पे। सर इस तरह से आपने सोचे होंगे कुछ अकाउंट्स, राइट? आपने भी सोचे थे, इन्होंने भी सोचा। इन्होंने देखिए डेफिनेशन दी है आपको एफिनिटी डायग्राम की। एफिनिटी डायग्राम और चार्ट्स हेल्प ऑर्गेनाइज रैंडम आइडियाज इनटू ग्रुप्स। अभी तक हम यही कर रहे हैं, रैंडम आइडियाज निकले उनको हमने ग्रुपिंग कर दी उसकी। अच्छा आपने ये चीज कॉमर्स वालों सबने देखी होगी, इसको क्या कहते हैं? बैलेंस शीट ना, राइट? बैलेंस शीट। तो मैं आपसे ये चाह रहा हूं कि आपने जितनी भी अभी तक अकाउंट्स का हेड सोचा है, उन सबको सर इन कैटेगरीज के अंदर फिल करिएगा, जो हम लोग करते आ रहे हैं बिल्कुल बचपन से, जब से अकाउंटेंसी हमने मतलब देखी है। तो सर क्या मुझे एसेट्स में कैपिटल लिखना चाहिए? सर मतलब क्या है कि हर चीज की एक प्रॉपर जगह है, राइट? क्या मुझे इक्विटी में जाके कार लिखनी चाहिए? नहीं सर, उसकी जगह एसेट्स में। सर ऑर्गेनाइज द हेड्स ऑफ अकाउंट्स दैट यू हैव जस्ट रिटन। और फिर मैं आपको एक ऐसे के साथ ही काम करा रहा हूँ, लास्ट थिंग एंड देन वी विल बी डन फॉर टुडे। जल्द सर इसको ऑर्गेनाइज करें, हेड्स ऑफ अकाउंट्स लिखे थे हमने, उसमें से एसेट्स को एसेट्स की जगह लिखे हम, लायबिलिटीज को लायबिलिटीज की जगह लिख लें। क्या हो? हाँ क्या हुआ? आप भाई ऑल गुड? परेशान लग रहे हो एकदम। आपने नहीं लिखे? क्यों? कोई बात, ये सबने नहीं लिखा। चले इसको फिर हम करते हैं ड्रॉप, और हम एक और चीज देखते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। टेक अ लुक एट दिस वन गाइस, गाइस 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 गाइस। अच्छा ये देखो, जल्दी से इधर देख लो यार, इस पैराग्राफ को पढ़ो।
this is a form of a narrative essay, but I want you to take a look at something else. Done? Did you understand it? First para only. Yeah? All clear? Could you okay, this is a story of a person, of a woman actually, of a girl actually, जिसको लगा था कि उसकी ग्रेग के साथ जो है ना वो डेट है और she was very happy about that, but actually the reality was something else. ग्रेग ने इसको यूज किया था to win the ugliest date contest because she was fat, right? Then she flips the idea और वो कहती है कि जी अगले 2 साल मैंने इतना वेट कम किया, और फिर वो बताती है कि जी इस वेट लॉस की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया, सोशल कॉन्फिडेंस आया, मुझ में इमोशनल कॉन्फिडेंस आया, और मुझ में प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आया. सर मैं आपसे ये चाहता हूं, आई वांट यू टू ब्रेनस्टॉर्म अगेन. यहाँ पे कैटेगरी पहले से बनी हुई है, राइट? मैं चाहता हूं, देखिएगा जी, एक हेडिंग डालें, सोशल कॉन्फिडेंस ऑफ वेट लॉस and professional confidence of weight loss. Social confidence after losing weight and professional confidence after losing weight. अब इन दो आइडियाज को जरा ब्रेनस्टॉर्म करें. क्यों कैटेगरीज करना इंपॉर्टेंट है सर? इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आगे चल के उनके अलग अलग पैराग्राफ बनाने होते हैं. इफ यू कैन सी द फर्स्ट, so social confidence and professional confidence. ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ टोटली बना हुआ सर सोशल कॉन्फिडेंस पे, सर दूसरा बना हुआ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस पे, लेकिन वो आपको दिखा नहीं रहा. सोचें किस तरह से आपके अंदर सोशल कॉन्फिडेंस आता है आफ्टर लूजिंग वेट, किस तरह से आपके अंदर प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस आता है आफ्टर लूजिंग वेट. नहीं, अभी सिर्फ सोचो, अभी इन आइडियाज को अरेंज कर रहे हैं. We'll talk afterwards in the next classes. Weight loss से सर कैसे एक बंदा सोशली कॉन्फिडेंट फील करता है? Can you give me ideas? Can you brainstorm about it? करें? वो लिखो ना, बुलेट पॉइंट्स बनाओ. क्या यहाँ लिखने में इसे देख के बनाओ. Brainstorm these ideas, guys. So social confidence means the independence to wear anything that you want. A person who is a bit fatter or healthier will not be able to try on every dress and look good in it. Yeah, social confidence आता है उससे. आप कहीं पर भी जा सकते हो, पार्टीज अटेंड कर सकते हो, शादियों पे खुले तरीके से जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं. सबको आपको पता है कि यार हर कोई मुझे देख रहा है, nobody is judging me, right? Let's go. How many of you have gone out to see a movie in the cinema? Maybe sometimes. 1 2 3 4 5 6 काफी सारे लोग हैं. ठीक है. ये पढ़ो जल्दी से. It's okay. पढ़ो.
So first पैराग्राफ में कहती हैं जी I'm a movie fanatic. मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है. मेरे दोस्तों को my friends count on me to know every movie trivia. उनको पता है कि इसको हर सवाल का जवाब पता होगा हर मूवी से रिलेटेड. मुझे ड्रू बैरिमोर के बारे में भी पता है. मुझे ऑस्कर किसने कब जीता है वो भी पता है. लेकिन अब मैंने मूवीज देखने के लिए थिएटर जाना बंद कर दिया क्योंकि while I love movies as much as ever, the inconveniences of going out, the temptations of the theater, and the behavior of some patrons, which means people, is the reason for me to stay home and rent a DVD. So, the first paragraph is totally inconveniences of going out. Write down or brainstorm those inconveniences. That's the last task of the day. Let's go. What difficulties do you see when you're going out to watch a movie? 5 difficulties लेके मुझे दे दे जल्दी से कम से कम 5. क्या ठीक है सॉरी write it down. सर जल्दी से 5 आइडियाज देखें. ये सही है लाइन में खड़ा होना पड़ता है. दिस इज अ वैलिड आइडिया. और ठीक है सही. हाँ लिखो. लेकिन देखो इनकन्वीनियंस ऑफ गोइंग आउट रास्ते में जाने वाले प्रॉब्लम्स पहले देखो ना. वो सही है. लिख लो अपने पास. बिल्कुल सही. क्या 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 बोलो. बोलना भाई. पार्किंग प्रॉब्लम्स लिखे. ठीक है. अच्छा अब अगर आपने ये सब चीजें लिखी हैं तो ये एक पैराग्राफ देखें. ये वाला पैराग्राफ. इसमें वही सारी चीजें लिखी हैं जो आपने सोची हैं. सर क्या एक लंबी ड्राइव करके जाना पड़ता है आपको. लिखा गुड. क्या उसके बाद हाँ बिल्कुल सही है. ट्रैफिक होती है सर. उसके बाद पार्किंग के लिए जगह ढूंढना है सर. बिग बिग प्रॉब्लम. लिखा हुआ आपने. सही है सर. उसके बाद नॉइज. ठीक है. इंटरनेट कनेक्शन कितने में आता है. 2000 रुपए पर मंथ मैक्सिमम. ठीक है जी. और उसमें हम कितनी मूवीज देख सकते हैं. अनलिमिटेड. लेकिन वहां पे जाकर हमें एक मूवी देखने के लिए 2000 रुपए लगाने पड़ते हैं. राइट. लाइन में भी लगना पड़ता है. सर ये देखिए जरा इसको. यही सारी बातें लिखी हुई है. I'm reading it for you. Stay with me. To begin with, I just don't enjoy the general hassle of the evening. Since the small local movie theaters is a thing of the past, I have to drive for 15 minutes. 15 minutes पहले मुझे drive करना पड़ता. The parking lot is always shared with several restaurants and supermarket. So it's always jammed. So दूसरा problem क्या आ गया. Parking हमेशा नहीं मिलती है. I have to drive around at a snail's pace to spot another driver backing out. Then it's time to stand in an endless line. इन्होंने बोला था लाइन में भी लगना पड़ता है सर. ये लाइन आ गई आपकी. So अभी तक जितना हमने पढ़ा उससे ये समझ आता है कि सर जो चीजें हमें प्लान करनी है ना, जो बुलेट पॉइंट्स बनानी है, उन्हीं का हमने क्या करना है. पूरा पैराग्राफ कन्वर्ट करना है. Do you understand that part? इसी के साथ सर आज का कोई सवाल किसी का. Let's end the class here. Thank you so much for your time.